Linear programming is the method used in decision making in a business for obtaining maximum or minimum value of a linear expression z is equal to x plus by subject to satisfy a certain given inequations. Okay? So here z is equal to ax plus by is an expression, linear expression, and it is called objective function. Z is equal to ax plus by is called objective function. First of all, we will define what is linear programming. Linear programming is the method used in decision making in a business for obtaining maximum or minimum value of the linear expression z is equal to ax plus by subject to satisfy a certain given inequations. So here z is equal to ax plus by. This linear expression is called linear objective. This function is called objective function. Objective function. Now we will define objective function. Objective function. Z is equal to ax plus by is a linear expression which gives the maximum value or minimum value of a function of minimum value of z satisfying the given inequations. Satisfying the given inequations, then z is equal to ax plus by is called objective function. And linear equations are called constraints. The inequations involved in decision making for a business for maxima or minimum value of the objective function satisfies by the inequations. Are called constraints. Hello, Shubham. Hello. Yes, sir. Today we will learn
linear programming, the last chapter. Okay. So this chapter is very important, very easy. But you have to know the terminology of this chapter first. So what is linear programming? A history is behind this chapter. आपको सबसे पहले linear programming का समझना है कि क्या है. What is linear programming? Linear programming is a method. What is linear programming? Linear programming is a method used in decision making in a business for obtaining maximum or minimum value of a linear expression z is equal to ax plus by subject to satisfy a certain given inequation. So here linear inequations z is equal to ax plus by is called objective function. What is objective function? This linear expression z is equal to x plus by is called objective function. Here we have defined what is objective function. Z is equal to x plus by is a linear expression which gives the maximum value or minimum value of a z satisfying the given inequations. Then z is equal to x plus by is called objective function. Now we will define constraints. Every inequations involving in decision making for a business for obtaining maximum or minimum value of a linear expression z is equal to x plus by are called constraints. So what are the constraints? Constraints are the inequations involved in decision making for a business for maximum or minimum value of the objective function. ठीक है, are called constraints. ठीक है. अब देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. सॉरी, नॉन नेगेटिव constraints. Non-negative constraints. हेलो, अब जितने क्वेश्चन को हम लोग इसमें डील करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करेंगे. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? x is greater than equal than 0, y is greater than equal than 0. तो ये इनइक्वेशन है, दो इनइक्वेशंस है. इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स बिकॉज़ x is greater than equal than 0, y is greater than equal than 0. x is greater than equal than 0, y is greater than equal than 0 are called non-negative constants. और जितने भी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्व करते हैं, इसलिए वी विल टेक हेल्प ऑफ नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स. ठीक है. अब लिखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमल वैल्यू. ये एकदम आसान है, बहुत आसान है. फिल्म बनाना इसमें optimal value of an objective function. ठीक है. मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो भी मिलेगा दोनों कहलाता है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू दोनों कहलाता है ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. द मैक्सिमम
and minimum value of an objective function, maximum and minimum value of an objective function are called optimal value. Optimal value. Suppose if you have to find the optimal value, you will have to find the maximum as well as minimum value of the objective function z. Okay? Now feasible solution. Now feasible solution. Feasible solution. अब देखिए, ये मान लीजिए ग्राफ है, तो जितना भी शेडेड है पोर्शन, इसको हम कहेंगे फिजिबल सॉल्यूशन. ठीक है? A set of values of variables satisfying all the constraints. ठीक है? A set of values, ये क्या है? इसमें बहुत सा पॉइंट है, सब सेटिस्फाई कर रहा है, कॉन्स्टेंट्स सबका को सेटिस्फाई कर रहा है. A set of values of variables, a set of values of variables which satisfies the inequations given in making a decision. ठीक है? ये सब कहलाता है, ये पूरे को हम कहेंगे फिजिबल सॉल्यूशन, जो भी सेटिस्फाई करेगा. A set of values of variables will satisfy the equations given in making a decision. Maximum और minimum value for z is equal to ax plus by. ठीक है? ये कहलाता है फिजिबल सॉल्यूशन. समझ गए? अब लिखिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ठीक है? अब यहां देख लो, ये फिजिबल सॉल्यूशन व्हिच लीड्स टू ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ये फिजिबल सॉल्यूशन which leads to the optimal solutions, optimal value of solutions. ठीक है? Optimal value of an objective function, optimal value of an objective
function is called optimal solution. Optimal solution, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट यहां देखिए, मान लीजिए ये दिया हुआ है x प्लस वाई इज लेस एन इक्वल देन 1 का ये ग्राफ है, ठीक है। और x 3x प्लस 4y इज लेस एन इक्वल देन 3 इसका ये ग्राफ है, ठीक है। तो जितने फिजिबल सॉल्यूशन हैं, अब इसमें ये पॉइंट, ये किसका दो ग्राफ, दो इन इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। एक ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये हुआ, इसका है। तो ये लेस, ये एक ग्राफ है, ठीक है। इसका ग्राफ है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल देन 1, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट्स जितने भी इक्वेशंस होंगे सब कांस्टेंट्स कहलाता है, ठीक है। और ये है x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ये सॉरी y इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशंस involved in feasible solution are called corner points. Point of intersections of inequations of feasible solution are called corner points, corner points, ठीक है। और corner points plays a vital role in solving the problems of linear programming, ठीक है। अब देखिए इसका थ्योरी पार्ट इतना ही था, अब हम सवाल बनाएंगे, ठीक है ना। मिटा दें, यस सर। देख लीजिए। अभी दो तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। एक 2 नंबर में, एक 4 नंबर में और एक 6 नंबर में, 3 तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो पहला देख लीजिए, पहला दिया हुआ है ड्रॉ द फिगर, ठीक है। मैक्सिमाइज एंड minimize z is equal to 3x plus 9y subject to the constant, subject to the constant x plus 3y is less than equal than 60, x plus y is greater than equal than 10, x is less than equal than y और x is greater than 0 and y is greater than equal than 0, ठीक है। पहले फिगर और
solve the following graphically. इसको देखोगे शुभम ठीक से। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। दाहिने जितना लेंगे y वो y एक्सिस के, ये सब हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 0, और x को x डैश एक्सिस के ये हो जाएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो एक हमने ग्राफ खींच लिया, ये और ये, ठीक है। अब इसका देखिए, ये है x और y, x हम 0 रखे, x 0 तो 3y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू 20, और y 0 तो x हो जाएगा 60, ठीक है। अब इसका ग्राफ खींच लीजिए पहले आराम से। तो x 0 y 20, 1 2 3, ये 20 हो गया, ये x 0 और y 20, एक पॉइंट ये मिला हमको। दूसरा x 60, 10 20 30 40 50 60, ये 60, ये हो गया 60 और 0, y यहाँ 0 होता है, ठीक है। दोनों को मिलाते हुए हम लाइन खींचिए, ठीक समझ रहे हो शुभम। अब देखिए यहाँ पे है x प्लस 3y इक्वल टू 60 लेस एंड इक्वल। तो लेस एंड इक्वल का मतलब है ऑरिजिन किधर है, तो x और y दोनों इसमें हम रख के देखते हैं। तो देखिए यदि हम रखते हैं 0 प्लस 3 इंटू 0 इज लेस एंड इक्वल देन 60, तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये हो जाएगा 0 इज लेस एंड इक्वल देन 60, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ओरिजिन की ओर हम इसको डाल करेंगे, अभी एरो लगा दीजिए, किधर हम डाल करेंगे, ओरिजिन की ओर, ओके। नेक्स्ट x प्लस y इक्वल टू 10, तो x और y का इसका ग्राफ देखिए खींचने से पहले x 0 y 10, y 0 x 10, तो ये हो गया, ये 10 है, एक मिला हमको ये 10 और 0, और दूसरा ये मिला हमको, ये है 0 और 10, ठीक है। तो ये इस दोनों को मिलाते हुए हम लाइन खींच लिए, ये आया हमको। अब x प्लस y इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, तो इसमें यदि हम रखते हैं 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 10, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसको हम किधर डाल करेंगे, ऊपर की ओर, जिधर ओरिजिन नहीं है उसकी उल्टा ओर, ठीक है, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं किया, तो ओरिजिन की ओर नहीं डाल करके हम इसको इधर डाल दिए, ओके। अब देखिए ये हमको मिले x इज लेस एंड इक्वल देन y, तो इसका x इक्वल टू y का ग्राफ खींचेंगे, ये 45 से खींचता है, ये 45 से हमको ले जाएंगे इसको, ठीक है। ये 45 से जाएगा। अब देखिए ये हो गया, अब ये न्यूट्रल है। अब देखिए हम डार्क कहां से कहां करेंगे, ये कह रहा है कि इधर, तो ये हम ये डार्क करेंगे या ये डार्क करेंगे, ठीक है। और x इज लेस देन y, x इज लेस देन y है। तो अब देखिए इसमें हम किसको डाल करना है हमको, x इज लेस एंड इक्वल देन y, x हमेशा y से कम होगा, ठीक है। तो ये ठीक बीचों बीच बटेगा, देख रहे हो ना, हेलो। तो x इज, Yes, sir. इसको नहीं डाल करके हम क्या करेंगे, हम इसको डाल करेंगे, इसको हटा देंगे, क्योंकि ये हमको कह रहा है इतने ही दूर हम डाल करते हैं, ठीक है। इतने दूर क्यों, क्योंकि x इज लेस एंड इक्वल देन y, x हमेशा y से कम है, इसलिए यही ये हमसे डाल किए,
ये समझ गए इसको? आप देखिए x इज इक्वल टू, ये था x इज इक्वल टू y का, और x इज लेस देन y, तो y से x इज लेस एंड इक्वल देन y, तो y से हम कम लिए, ठीक है। अब ये हो गया ग्राफ, ठीक है ना। अब इसका कॉर्नर पॉइंट एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 कॉर्नर पॉइंट है, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो अब ये इसको हम लिखते हैं 0 20, कितना था 0 20, क्योंकि इसको यहाँ पे देख लीजिए 0 और 20 है ना, ये हम लिए थे 0 20। अच्छा, ये हम लिए हुए हैं 0 10, बी ले लीजिए, ये बी ले लीजिए 0 10। अब इस दोनों इंटर, ये x इक्वल टू y, और ये था पहला x प्लस 3y इक्वल टू 60, और x प्लस x इक्वल टू y, इसको सॉल्व कीजिए, तो 4y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 15, y 15 हो गए, तो x भी 15 होगा, x इक्वल टू 15, ठीक है। तो यहाँ पे इस ये हो जाएगा 15x और 15y दोनों, ये b था, ये हम c मान लिए, ठीक है। इसको, इस पॉइंट को हमने c माना, c हो गया 15 15, b हमने लिया है 0 10, ये लिया है हमने 0 20, ये सब, यही सब ये कॉर्नर पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इन इक्वेशंस है। ये था x प्लस y इक्वल टू 10 और x इक्वल टू y, तो 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, ये हो गया d, d इक्वल टू 5 5, ठीक है, d इक्वल टू 5 5। अब देखिए हमको दिया हुआ है z इक्वल टू 3x प्लस 9y, यही ना है, z इक्वल टू 3x प्लस 9y। अब देखिए एट a, ठीक है, 0 20, तो z इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 20 इक्वल टू 180 होगी। एट पॉइंट देखिए b 0 10, तो therefore z is equal to 3 into 0 plus 9 into 10 is equal to 90। At c हमको 15 है, तो therefore z is equal to 3 into 15 plus 9 into 15, 15 3 जा 45 और 15 9 जा 135, 135, ये हो गया 180, ठीक है। और एट सी हो गया डी 5 5, therefore z is equal to, ये हो गया 3 into 5 plus 9 into 5 is equal to 15 plus 45 is equal to 60। तो आप देखो, अब मैक्सिमम जो है जो पॉइंट पे है, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड कितना है 60, किस पॉइंट पे, डी पे। मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड इज 60 एट डी i5, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 180, कहां पे, तो 2 पॉइंट पे हमको दे रहा है, एट a is equal to 0 20 and at c 15 15, ठीक है। ये समझ गए इसको बढ़िया से। हेलो शुभम, हेलो 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 शुभम, रिस्पॉन्ड मी।
Next, question number second. Hello, sir. Hello. Hello, है सर। आवाज आ रहा है सर मेरा? हाँ, आवाज हमको मिल रहा है। ओके सर। क्या कोई दिक्कत है तो बोलो, फिर से बता देंगे। नो सर, नो सर। अब कोई डाउट होगा मान लो तो क्लास में आज का दिन था, समझे? हम 9 बजे चले आते हैं यहाँ पे। ओके सर। 9 बजे से 2 बजे तक रहते हैं, आप पूछ सकते हैं। यस सर। क्वेश्चन कहीं से तुम पूछ सकते हो, इसमें कोई ओके दिक्कत सर। नहीं ना है। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 6 मार्क्स में रहेगा और ग्राफ बनाने के लिए देगा 2 नंबर में। तो ग्राफ प्लॉट खींच लोगे ना, इन इक्वेशन से दिया जाएगा, ये z दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाएगा, वो 2 नंबर में रहता है। सिर्फ इन इक्वेशन जैसे तुमको बनाना होता है, उसमें 4 मार्क्स है, ये तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे। लिखो तो क्वेश्चन सेकेंड, a furniture dealer deals, मनोज जी हाँ सर। थोड़ा सा लिंक दीजिए तो इसमें। A furniture dealer deals in only 2 items, tables and chairs. He has rupees 5,000 to invest and he has space to store at most 60 pieces. A table cost him rupees 250 and a chair rupees 50. He can sell a table at a profit of rupees 50 and a chair at a profit of rupees 15. Assuming that he can sell all the items that he buys, gives in only 2 items. In only 2 items, tables and chairs. He has rupees 5,000 to invest and a space to store at most 60 pieces. A table cost him rupees 250 and a chair rupees 50. He can sell a table at a profit of rupees 50 and a chair rupees at a profit of rupees 15. Assuming that he can sell all the items that he buys, how should he invest his money in order that he may maximize his profit.
his profit. So read the question carefully. A furniture dealer deals in only two items, tables and chairs. दो ही तरह का वो चीज को डील करता है, टेबल बेचता है या चेयर बेचता है और चेयर. He has ₹15,000 to invest और उसको 5,000 रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल Yes, sir. ठीक है, we will find out his constants. तो ये constants हमको मिल गया. 5,000 से ज्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है. दूसरा, Yes, sir. and a space to store at most 60 pieces और 60 पीस से ज्यादा रखने का स्टोर करने का जगह नहीं है. तो लेस Yes, sir. क्या अब मान लेते हैं हम लेट नंबर ऑफ केबल्स इज इक्वल टू x, नंबर ऑफ चेयर्स इज इक्वल टू y. ठीक है. अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक टेबल को खरीदने में उसको 250 रुपया लगता है. एक्स टेबल खरीदा तो 250x प्लस 50 रुपया में एक चेयर उसको मिल रहा है. तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 50y इज लेस एंड इक्वल देन 5,000. इससे ज्यादा रुपया का कोई चीज नहीं खरीद सकता है. तो पहला ये रेस्ट्रिक्शन हमको मिल गया. ठीक है. और z इज इक्वल टू ठीक है ना, ये 250x प्लस 50y. दूसरा ये कांस्टेंट हमको मिल गया. ठीक है. तीसरा अब देखिए he can sell a table at a profit of 50 and a chair at a profit of ₹15. ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये था निकालना, कांस्टेंट्स निकालना है. ठीक है ना. अब इसको देखिए 50 से डिवाइड कीजिए तो 5x प्लस y इज लेस एंड इक्वल देन 100. तो इसको ये पहला कांस्टेंट हमको मिल गया. ठीक है ना. अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको लाभ कितना होगा. तो एक टेबल बेचने पे 50 रुपीज लाभ हो रहा है. तो 50x प्लस एक चेयर बेचने पर 15y इसको लाभ होगा. तो टोटल लाभ इसको 50x प्लस 15y जेड हमको निकल गया. ठीक है. अब देखिए ये रखने के लिए मान लीजिए x टेबल खरीद लिया और y चेयर खरीद लिया. तो x प्लस y इज लेस एंड इक्वल देन 60. ये सेकेंड हमको मिल गया, सेकेंड इक्वेशन मिल गया. क्योंकि रखने के लिए स्पेस 60 ही पीस के लिए है. इससे कम रख सकता है, इससे ज्यादा नहीं. इसलिए यहाँ इक्वेशन लगा है x प्लस y इज लेस एंड इक्वल देन 60. अब देखिए अब हम ग्राफ बनाएंगे. हमने पहले कहा था नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स को हमेशा हम लेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0. अब देखिए इसका x और y टेबल खींचिए. इसका x और y, x 0 तो y 20, y 0 तो x 0 y 100 और y 0 x 20. ठीक है. ये हो गया. तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं x 0 y 100 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ये हम लिए ये 20 20 एक मिला हमको 20 0. इधर हमको मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये पॉइंट हमको मिल रहा है. दूसरा ये मिल रहा है. ठीक है. हम ग्राफ कीजिए. 0 100 है, ये x 0 y 100, ये है 0 20 0. ठीक है. बस 2 मिनट में हो जाएगा. ये हो गया. Yes. इसका ग्राफ कीजिए. x और y, x 0 y 60, y 0 x 60. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 ये हमको मिला 60 0.
तो 60 0 हो गया ये x 60 y 0 और दूसरा 1 2 3 4 5 6 ये मिल गया हमको, ये हो गए 0 60 0 60, ठीक है। अब दोनों ये जो है हमको लेस एंड इक्वल देन बी है 5000, ये 100 से 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है 5x plus y is less than equal than 100, और इन 0 0 x करके और y करके देखिए 0 is less than equal than y, तो ये हम इधर कीजिए इसको, और ये भी है x plus y is less than equal than 60, तो ये भी इधर ही आ रहा है, मतलब दोनों के बीच का ये आ रहा है। अब पहला हो गया कांस्टेंट, ये हो गया 20 0, ये निकालना है, ये हमको दिया हुआ है 0 60, इस दोनों को हम सॉल्व करते हैं, x plus y is equal to 60 और 5x plus y is equal to 100, सॉल्व कीजिए, कैंसिल 40, 4x is equal to 40, therefore x is equal to 10, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया 10, सेकेंड कोऑर्डिनेट y निकालिए, y हो गया 50। अब देखिए ये z इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 50x plus 15y और एट 0 0 0, तो z इज इक्वल टू 0 एट ये 20 0 20 0, तो 20 0 है, z इज इक्वल टू 50 into 20 plus 15 into 0, तो ये 1000 हो गया, ठीक है। और एट b हमको ये लिए b 10 और 50 है, तो z इज इक्वल टू 50 into x हो गया 10 plus 15 into 50 is equal to 500 plus 750 is equal to 1250, ठीक है। और एट c हम लिए 0 6, तो therefore z is equal to 50 into 0 plus 15 into 60 is equal to 900, तो मैक्सिमम कितना पे हमको आ रहा है 1250 आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू हमको दे रहा है 1250 एट b 10 और 50, तो यदि ये चेयर खरीदता है टेबल 10 टेबल खरीदने पे और चेयर इज इक्वल टू 50, 10 टेबल खरीदेगा 50 चेयर खरीदेगा, तब इसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये समझे, कोई दिक्कत है तो बोलो। सबसे पहले क्वेश्चन हम बढ़िया से आराम से पढ़ लेंगे और इससे कांस्टेंट निकालेंगे। जब कांस्टेंट तुमको मिल जाएगा, इन इक्वेशन देख रहे हो ना पढ़ के कैसे निकालने हैं, वैसे ही निकालने हैं आपको। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में तुमको दिक्कत होगा तो पर्सनली तुम आके यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। ओके सर, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। और हेलो